पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर मकसद तिरंगा, हर सपना तिरंगा, हर संकल्प तिरंगा। স্বাধীনতা উদযাপন করব, ঘরে ঘরে তিরঙ্গা উত্তোলন করব। স্বাধীনতাৰ ৰঙত ৰঙীন হম, ঘৰে ঘৰে পতাকা উৰাম। स्वातंत्र्य दिनामध्ये रंगून जाऊया आणि परत घरोघरी तिरंगा फडकवूया। निंगतंबगी मचु अहुमना युमथों खुदिंगी संग्रहणी మూవర్ణ గుడి ఎన్ పెరుమై ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా మన ప్రతి ఇంట్లో మన దేశ త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేద్దాం haka sngi rakhi ya ka jing lai lot ni penyeng ya ka lama India jungi haman la ki thliye आजादी के रंग में रंग जाएंगे, हर घर तिरंगा फिर लहराएंगे। जय हिंद। जब छत पे तिरंगा लहराता है ना, तो सिर्फ वो छत पे भी नहीं लहराता है, मन में भी लहराता है। Hi everyone. Do all the good you can for all the people you can in all the ways you can as long as you can. Today is 13th of August 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, stop chasing opportunities. Build something valuable and let them come to you. Always remember, networking is overrated. Become a person of value and the network will be available whenever you need it. Study full throttle. This is Telegram quiz. Every day we are having 5 such multiple choice questions in our Telegram channel. Join. Visit this website for all the links. This is daily quiz. This is question number 1. Which of the following marks the boundary between continental and oceanic crust? Continental shelf, continental slope, कॉन्टिनेंटल राइज या फिर ओशियानिक रिजेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेस्टर्लीज इन सदर्न हेमिस्फेयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। व्हाई? सदर्न हेमिस्फेयर हैज लेस लैंड मास एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन सदर्न हेमिस्फेयर एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। Select the incorrect answer using the codes given below. Tell what is the right option. Question number 3. The pattern which consists of nearly parallel streams that flow into main trunk stream at high angles is called as what? Is it rectangular, trellis, radial या फिर dendritic pattern? The essential factor which differentiates an urban area from the rural area is lifestyle, resources, occupation या फिर education. In which of the following types of agriculture farming is done on large holding and a lot of capital is required? Is it subsistence farming, hill cultivation, jhuming cultivation or plantation? So these are 5 questions for today. You can post your answers in the comment section down below. This is English. English is very very important. Very lazy के बजाय क्यों ना हम बोले indolent. Very fat, obese. Very afraid, terrified. Very accurate, exact है. Very often, frequently, very smelly, pungent. Smooth को sleek बोल सकते हैं. Very willing के बजाय हम बोल सकते हैं वो eager है. Very long term, enduring, very nervous, apprehensive. Very strong को हम unyielding बोल सकते हैं. So instead of saying this word very जो हम overuse करते हैं, we could be more specific with the word जो हमें बोल रहा है. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है, सही शब्दों का सटीक उपयोग बहुत ज़रूरी है. दिस इज सी सेट. बड़ा आसान सा सवाल है. अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क कंटेन्स 80% मिल्क. तो वाटर और मिल्क है जिसमें 80% मिल्क है, 20% वाटर है. 50 लीटर ऑफ सच अ मिक्सचर. तो मिक्सचर कितना है? 50 लीटर का है. तो 50 का 80% मिल्क है, तो 8 × 5 40 लीटर मिल्क है और 10 लीटर वाटर है. तो ये पहली कंडीशन डिराइव हो गई. मैथ्स में हमेशा इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना चाहिए, तो ये इंग्लिश लिखा था, हमने इसे मैथ्स में लिख दिया. सेकंड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 50%. अब वाटर 50% हो गया है, मतलब जितना मिल्क है उतना ही वाटर है. तो पहले 40 लीटर मिल्क था और 10 लीटर वाटर था.
अब वाटर भी मिल्क के बराबर हो गया है, मतलब वाटर भी 40 लीटर हो जाना चाहिए। तो पहले 10 है तो 30 लीटर वाटर इसमें और ऐड करना पड़ेगा। तो ये भी 40 हो जाएगा और मिल्क भी 40 हो जाएगा, दोनों 50-50% हो जाएंगे। सो हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू इंक्रीज? सो द राइट आंसर इज सी। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जितने सवाल करेंगे ना, चीजें ओरल होने लग जाती है। बहुत सारी चीजें आपको ऑब्वियस नजर आएगी कि ये ऐसे ही होगा। सिमिलरली आपके साथ GS1 में भी होगा। आप 10,000 MCQ सॉल्व कर लो, 10,000 MCQ सॉल्व कर लो, आपको पैटर्न समझ में आने लग जाएगा, कैसे सवाल आते हैं, किन जगह से सवाल आते हैं, पूछने का तरीका क्या होता है। आपका गेस वर्क भी बेटर होगा, एक्यूरेसी भी बेटर होगी। सो सॉल्व एज मेनी MCQs एज पॉसिबल। प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, एप्लीकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। रोट लर्निंग का इतना यूटिलिटी नहीं है। सो द राइट आंसर इज दिस सी, एप्लीकेशन। सो दैट इज वाई प्रीलिम्स बहुत बदल गया है। अब ये पहले जैसा नहीं हुआ। 26 अभी 28 मई को भी देखा, 26 मई को भी आपको काफ़ी सारे सरप्राइजेस हैं। बट ऐसी बात नहीं है कि हम इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। 14,000 लोगों ने इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। So if 14,000 students can qualify the prelims, then why not you? It is important कि हम एक integrated approach रखें। और मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स में अक्सर टेंडेंसी होती है, वो पेनी वाइज होते हैं, छोटी छोटी जगह बचत करते हैं, छोटा छोटा वो सोचते हैं कि ये ठीक हो जाए, वैसा ठीक हो जाए, और इस चक्कर में वो जो बिगर पिक्चर होती है वो उसको मिस कर देते हैं। और फिर ईयर कॉस्ट होता है, और आपको पता है 1 ईयर का जो वैल्यू होता है, यू विल रिटायर एट द एज ऑफ 60 ईयर। सो जितना लेट जाओगे उतना ही आपको सर्विस का टाइम कम मिलेगा। बाय द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपकी एनुअल मंथली सैलरी 2.5 लाख रुपए होगी, आपको 25 to 30, 40 लाख रुपए का पड़ता है 1 ईयर। सो दैट इज वाई वी शुड नॉट बी पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। नेक्स्ट ईयर सिचुएशन बदलती है, हालात बदलते हैं, सब चेंज हो जाता है, ईयर सेम नहीं होते, कंपटीशन भी न्यू रहता है। सो इफ यू हैव डिसाइडेड यू आर गोइंग टू फाइट दिस 2024 एग्जाम, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। हाफ हार्टेड एफर्ट से वैसे भी रिजल्ट्स नहीं आते हैं। 26 मई 2024 को टारगेट करिए, एंड गुड शुड बी एग्रेसिव, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। सो ये सारे कोर सब्जेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं। अवर आइडिया इज वेरी सिंपल। सुबह 9 बजे आपको डेस्क में बैठना है, 10 बजे से डेली न्यूज़पेपर सेशन लाइव अटेंड करना है, 9 to 10 आपको होमवर्क करना है, रिवीजन करना है, देन 10 to 11 न्यूज़पेपर, 11 to 12:30 लाइव क्लासेस सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो डेली आप ये 3.5 घंटे निकालिए, आपकी पढ़ाई ऑन ट्रैक रहेगी और आपका 100% ये सिलेक्शन होगा 26 मई 2024 का। बट यू हैव टू बी सिंसियर एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं वेरी वेरी सिस्टमेटिकली। 15 जून को ये स्टार्ट हुआ था कोर्स, अभी तकरीबन 2 महीने हो गए। इन 2 महीनों में प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आया, तो वी वर गोइंग लिटिल बिट स्लो। फिलहाल हमने ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट अभी हमारा कंप्लीट होने वाला है, और साथ ही हमने करंट अफेयर्स, MCQ, CSET, इन सब चीज़ों पे भी काफ़ी ध्यान दिया, पर्सनालिटी में इफेक्टिव कम्युनिकेशन एटसेट्रा। अब ये क्लासेस ज़्यादा स्पीड से होंगी और ज़्यादा स्ट्रीम्ड मैनर पे हम करेंगे, बिकॉज मेंस एग्जाम भी नेक्स्ट मंथ ओवर हो जाएगा, फिर सारा फोकस आ जाएगा प्रीलिम्स के बैच में। सो 15 जून को ये बैच स्टार्ट हुआ था, ये कंटिन्यू रहेगा। मैनी स्टूडेंट्स वर सेइंग कि उनको बाद में पता चला, तो क्या बैच 2 जैसी कोई बात आने वाली है? तो यस, बैच 2 स्टार्ट होगा, इसकी 9 बजे शाम को क्लासेस होगी। बैच 1 सुबह 11 AM है, बैच 2 शाम को 9 PM पे होगा। और यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। तो गिव मी सम टाइम, मैं इसके डिटेल्स बताता हूँ, बट मोर और लेस व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि 1 सितंबर 2023, आज 15 अगस्त है, 1 सितंबर 2023 से बैच 2 चालू होगा प्रीलिम्स 1 का, और इसकी क्लासेस शाम को 9 बजे होगी। बैच 1 की क्लासेस सुबह 11 AM, बैच 2 की क्लासेस शाम को 9 PM। जो अभी ज्वाइन कर लेते हैं बैच 2, जैसे आज 15 अगस्त है, वो आज ही ज्वाइन कर लेते हैं, तो मीनवाइल दे कुड अटेंड क्लासेस इन दिस बैच 1, मतलब मॉर्निंग की क्लासेस में भी। तो वी विल मेक इट इन अ वे कि किसी भी टाइप का आपको कोई लॉसेस नहीं होगा। इनफैक्ट जो रिकॉर्डेड क्लासेस एटसेट्रा है वो भी आपको अवेलेबल होगी। तो ये 1 सितंबर से जो इवनिंग 9 PM बैच स्टार्ट होगा, इसमें हम अगेन सारे कोर सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स, MCQ एटसेट्रा स्टार्ट करेंगे। टाइमलाइन ये होगा, पॉलिटी हमारा 1 सितंबर से वी विल स्टार्ट, देन इकोनॉमी, देन हिस्ट्री, देन फिर हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट भी कंप्लीट करेंगे। तो अवर टारगेट वुड बी लाइक दिसंबर जनवरी तक आपके ये सारे कोर सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे बाय जनवरी।
ओके, सो दिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी ऑसम। ये बैच 2 है। फी स्ट्रक्चर इसका भी सेम रहेगा, दैट इज 5555। 111 एक बहुत स्पेशल नंबर था। 2022 में हमने सारी क्लासेस 1111 में की, 2023 में भी 1111 में कंटिन्यू किया। बट यू नो हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं और इस फी पे इतनी सारी चीज़ें करना डिफिकल्ट हो रहा है। सो दैट इज़ वाई ये ऑल इंक्लूसिव फी होगी और फी इज़ अगेन वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड रीजनेबल फी। वी आर कवरिंग कोर्सेज वर्थ lakhs of rupees for this nominal fee and this will be required. फी एक पॉइंट ऑफ एंट्रोपी नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स को ज़रूरी होता है फी पे करना, अदरवाइज स्टूडेंट शुड नॉट बिकम अ प्रोडक्ट। वहाँ जो भी क्लासेस होती है उसका जो पैरामाउंट होता है, प्रॉक्सिमिटी होती है, वो स्टूडेंट का बेस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए और वो तभी पॉसिबल हो जाएगा देन जब हम स्टूडेंट से एक फ़ी चार्ज करेंगे। सो फी हैज़ टू बी देयर। ये एक फ़ी है, दिस इज़ 5555, दिस इज़ ऑल इंक्लूसिव। और इस कोर्स का जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। 1 ईयर वैलिडिटी है 26 May 2024 तक। ओके, सो ये है बैच 2 और 1 September 2023 से स्टार्ट होगा। टू ज्वाइन द कोर्स अगेन विजिट दिस वेबसाइट और वहाँ पे सारे डिटेल्स हैं। यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप एज वेल फॉर मोर डिटेल्स। ओके, अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज द हिंदू। आज रिकॉर्डेड वीडियो है, कल से हम सुबह 10 बजे रिज्यूम करेंगे द हिंदू। सो दिस इज संडे August 13th 2023। दिस इज अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, द स्क्रैम्बल टू सेव द प्लैनेट्स लंग्स। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, इस पे कल हमने एक MCQ भी देखा था। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट है मतलब फोटोसिंथेसिस, मतलब ऑक्सीजन का रिलीज है, CO2 कंज्यूम हो रहा है। सो दैट इज वाई ये प्लैनेट का लंग्स बोला जाता है और ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सो इनको सेव करना हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। द लाइफ आफ्टर ADHD ऑटिज्म डायग्नोसिस बीइंग न्यूरो डाइवर्जेंट, इसको आगे देखते हैं। मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज, ये बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज ये दिखते नहीं है और I have seen in so many students they suffer a lot. So that is why it is our responsibility कि हम टॉक्सिक एटमॉस्फेयर से खुद को सेफगार्ड करें। इसको सेल्फिश होना नहीं बोलते, इसको सेल्फ हेल्प बोलते हैं। सो वेन एवर यू आर सीइंग सच थिंग्स यू कैन कीप डिस्टेंस, फोकस ऑन योर स्टडीज, फोकस ऑन योर सेल्फ। ओके, द लाइफ आफ्टर दिस, आगे इस पे बातें करते हैं। देन द नेक्स्ट इलेक्शन, टिल नेक्स्ट इलेक्शन मिस्टर अनवर उल हक कक्कर इज पाकिस्तान केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। India pips Malaysia in a thrilling final, bags title. Wonderful. Asian Champions Trophy. Strife pushes 230 lives to dense jungle. यहाँ पे बात है मणिपुर। मोरे, इस बार प्रीलिम्स में सवाल आया था। मोरे, दिस जो साउथ एशियन हाईवे बनाने की बात है, तो दिस इज मणिपुर का मोरे। और यहाँ पे सेवरल मीती फैमिली वो स्ट्रैंडेड है डेंस जंगल्स में। ये जो मणिपुर और म्यांमार इधर कंट्री आ जाता है, मणिपुर अवर स्टेट, इसके बीच में जो बॉर्डर है वो ऐसी है कि 16 किलोमीटर तक जो पीपल है वो एक दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। सो बॉर्डर इज काइंड ऑफ लाइक पोरस। जब यहाँ पे वायलेंस स्टार्ट हुआ तो बहुत सारी मीती कम्युनिटी म्यांमार के जंगल्स में फॉर रेस्क्यू फॉर दिस शेल्टर वो जंगल में शिफ्ट हो गई। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहाँ से सेफगार्ड कैसे करें और कंडीशन नॉर्मल नहीं हो रही है स्टेट में। सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। So this is a strife pushes 230 lives to dense jungle. 4 key laws including Data Protection Act get precedence assent. See, Digital Personal Data Protection Act है, one pertaining to the control of services in Delhi. Services in Delhi. तो ऐसे 4 key laws अभी प्रेसिडेंट मैम ने साइन कर दिए। अब ये जो लॉ है ये एक्ट बन गए हैं और अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो दे आर नो मोर बिल। ये बिल पास हुआ लोकसभा और राज्यसभा से और अब ये प्रेसिडेंट मैम के पास गया और प्रेसिडेंट मैम ने साइन कर दिया। तो जब प्रेसिडेंट साइन करते हैं तो वो बिल बन जाता है एक्ट। तो ये लॉ पार्लियामेंट ने पास किए मॉनसून सेशन में और प्रेसिडेंट मैम ने भी इसमें साइन कर दिया है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट है। ये 3 मेंबर अथॉरिटी होगी जो हैंडल करेगी ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर्स अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली होता है, जैसे आप लोगों को कार्डर मिलेगा जब आपका सिलेक्शन होगा तो ऑगमट कार्डर होता है, उसमें आपको यूटी ऑफ दिल्ली में भी सर्विस करने का चांस मिलता है। सो ग्रुप ए ऑफिसर अगर दिल्ली गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं
तो सर्विस वो दिल्ली गवर्नमेंट में कर रहे हैं, बट उनका ट्रांसफर, पोस्टिंग एटसेट्रा ये काइंड ऑफ एक 3 मेंबर अथॉरिटी करेगी, और इसका प्रोविजन जो दिल्ली की सरकार है उनके पास नहीं रहेगा। तो ये एक बात है। लेट अस सी, जो दिल्ली है वो आर्टिकल 239AA के अंदर आता है, और कुछ प्रोविजंस दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं होते हैं। डेटा प्रोटेक्शन लॉ प्रोवाइड करेगा फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ एन इंडिविजुअल्स डेटा बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। डेटा का मिसयूज होता है, प्रोफाइलिंग होती है, और इससे सेफगार्ड करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन लॉ है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इससे RTI एक्ट क्या डायल्यूट तो नहीं हो जाएगा सेक्शन 8? द दिल्ली सर्विसेज बिल में एक्सटेंसिव डिबेट हुआ था, बट ये फिर फाइनली पास हो गया। ओके, तो पास्ड अमिड प्रोटेस्ट्स। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। जो नेक्स्ट है वो है डे आफ्टर स्कूल चिल्ड्रन फेल इल, MCD सेट्स अप प्रोब पैनल। तो एक FIR भी आया है, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी बुलाया है। फूड सैंपल्स क्या कंटामिनेटेड थे, बच्चों की यहाँ पे हेल्थ डिटीरियोरेट हो गई थी। स्कूल डेज। इंडिपेंडेंस डे, मेट्रो टू स्टार्ट अर्ली पार्किंग एट स्टेशंस आफ्टर 2 PM। मेट्रो जल्दी स्टार्ट होगी। स्पेशल सेल NABS MP बेस्ड आर्म्स सप्लायर। देन SBI फ्लैग्स ऑफ व्हीकल्स टू प्रमोट स्वनिधि स्कीम। तो दिस इज प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को कोलेट्रल फ्री माइक्रो लोन दिया जा रहा है। आप बता सकते हो कोलेट्रल फ्री का मतलब क्या होता है? कोलेट्रल फ्री माइक्रो लोन्स। ओके, देन दिस इज MCD लॉन्चेस क्लीनलीनेस कैंपेन। DCW receives 6.3 lakh calls for help in year domestic violence. Very important, domestic violence को दूर करना है। Tops list of abuses. Any type of abuse is wrong. Any type of violence is wrong. ये जो violence होता है ना, ये केवल physical violence नहीं होता। You will meet many people, इंटरनेट में कुछ ज़्यादा होते हैं, they verbal violence होता है, mental violence होता है, emotional violence होता है। एक और चीज़ होती है, वो होती है guilt trap. Many a times ecosystem will try to put you in a guilt trap. Guilt trap. This is also one kind of violence. तो ये डोमेस्टिक वायलेंस है, ये एक टाइप ऑफ अब्यूज है। सो यू हैव टू रेज वॉइस एंड यू हैव टू सेफगार्ड योरसेल्फ। हाईएस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पे रिपोर्ट हुए। और अगेन इट इज इंपॉर्टेंट कि इस चीज में सेंसिटिविटी भी हो और अवेयरनेस भी हो। एट द सेम टाइम यहाँ पर लॉज जो हैं, वर्क लॉज एटसेट्रा है, जो नियम है वो भी स्ट्रेंथन यहाँ पे किए जाए। जैसे यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट का है, साइबर क्राइम का है, डाउरी हैरासमेंट का है। दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स। ट्रांसजेंडर पीपल है, एट टाइम्स मिसबिहेवियर एटसेट्रा होता है, विच इज अगेन रॉन्ग। एवरीबडी हैज गॉट अ राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर। वी शुड बी रेस्पेक्टफुल। सो दिस इज देयर। सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस भी एक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर होता है, टॉक्सिक वर्क कल्चर होता है। सो द पॉइंट इज वी नीड टू रेज वॉइस। सो डोमेस्टिक वायलेंस टॉप्स लिस्ट ऑफ अब्यूजेस। क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है, स्वच्छता जरूरी होती है। आप जहां रहते हैं, जिस रूम में रहते हैं, जिस प्रीमाइसेस में रहते हैं, इट इज योर ड्यूटी टू कीप इट क्लीन। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। लावारिस वस्तु की सूचना देने पर दिल्ली पुलिस रखेगी आपकी पहचान गुप्त। तो ये दिल्ली पुलिस विजिलेंट आईज एंड ईयर्स है। इसका इनॉग्रल स्ट्राइड है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू दिल्ली इनटू अ क्राइम फ्री स्टेट। 14547 और 112 यहाँ के नंबर्स हैं। राजस्थान लॉ है गुड स्टार्ट। इट इज अबाउट गिग एम्प्लॉयज, जैसे स्विगी, जोमेटो के जो डिलीवरी पर्सन्स होते हैं। तो सेफ्टी नेट जरूरी होता है, हायर एंड फायर होता है, टॉक्सिक वर्क कल्चर भी होता है। वी नीड सर्टेन प्रोटेक्शन, ऐसा गिग वर्कर्स ने कहा। दिस इज तिरंगा यात्रा है, प्रिपेयरिंग फॉर इंडिपेंडेंस डे। मेरी माटी मेरा देश। फ्लाइंग फॉक्स बैट्स फॉर विजिलेंस वाइल डे रूस्टिंग फाइंड्स स्टडी। तो ये फ्लाइंग बैट्स है, फ्लाइंग फॉक्स बैट्स है। तो ये फ्लाइंग फॉक्स है, रूस्ट ग्रेगेरियसली एंड एक्सटर्नली इन ट्री कैनोपीज। तो ये इस तरीके से चमगादड़ है। ये इंडिया का लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ बैट्स है। ये कैनाइन है। आफ्टर अ कैनाइन फेबल टू बी स्लाई स्पेंड 7% ऑफ इट्स डे रूस्टिंग टाइम बीइंग एनवायरमेंटली विजिलेंट रहता है। ये विजिलेंट कैसे रहता है? नेक्टर एंड फ्रूट ईटिंग फ्लाइंग फॉक्स है ये। और ये जनरली एक वर्मिन माना जाता है। वर्मिन का मतलब बताइए? वर्मिन, नीलगाय अभी वर्मिन डिक्लेयर हुई थी। एज दे रेड ऑर्चर्ड्स इट हैड अ सिमिलर ऑफिशियल स्टेटस जो शेड्यूल 5 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में है, और ये शेड्यूल 2 लिस्ट में रखा गया है। मतलब हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है इसे। कीस्टोन स्पीशीज है,
causing seed dispersals of many plants in tropical systems. Keystone क्या होता है? जैसे ये आर्क होता है, ये कीस्टोन है, ये कीस्टोन पूरी आर्क को सस्टेन करके रखा है, सो दिस इज कीस्टोन. फ्लाइंग फॉक्स फैसिनेट करता है जूलॉजिस्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ईयर्स, और फैसिनेट करता है साइंटिस्ट को भी. तो इसको काफी स्टडी किया जाता है. कीस्टोन स्पीशीज जो होती है ये डिसप्रपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट रखती है नेचुरल एनवायरनमेंट में. इनका अबंडेंस ज़्यादा होता है और इनकी प्रेजेंस से इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहता है, तो इनकी प्रेजेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. तो एनवायरमेंटल एंड सोशल विजिलेंस ऑफ वन ऑफ टू सब स्पीशीज ऑफ इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, बिहेवियरल इकोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी, पीयर रिव्यूड इंटरनेशनल जर्नल में देखा हमने. सो स्टडी करते हैं और बैट्स और एनिमल्स रिजर्वॉयर ऑफ पैथोजेंस भी होते हैं, जूनोटिक डिसीजेस का भी थ्रेट होता है, तो एक केयरफुल स्टडी यहाँ पर जरूरी होती है. Vigilance is a manifestation of competition in canopy roosting bats, which can vary temporally and according to the spatial position. तो ये वहाँ पे territorial tendencies भी दिखाता है. Most bats forage at night and spend more than half of their lives roosting during the day in campus or colonies. तो ये predator भी होते हैं, environmental services भी करते हैं. ये मैमल होता है. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज ये मैमल्स होते हैं. द फ्लाइंग मैमल शोड वेरिंग लेवल ऑफ विजिलेंस अकॉर्डिंग टू रूस्टिंग आर्किटेक्चर. तो 82% यहाँ पर स्पेंड करते हैं टाइम, रूस्टिंग टाइम होता है इनका, तो इस पे अभी स्टडी की है. हंटिंग फॉर मीट एंड मेडिसिन, प्रोबेबल थ्रेट्स हैं लाइक फेलिंग ऑफ रूस्ट ट्रीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू ड्रामेटिक डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज. तो ये होते हैं फ्लाइंग बैट्स. देन दिस इज नेक्स्ट पेज, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म. तो जो टेक्सटाइल है, हम टेक्सटाइल को बहुत एनकरेज कर रहे हैं, इससे ह्यूज स्केल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है. देन दिस इज नेक्स्ट वन, रोइंग टू सक्सेस, टीम एफर्ट है. दिस इज वियापुरम चंदन स्नेक बोट है, बोट क्लब. 69th एडिशन है नेहरू ट्रॉफी बोट जो हो रहा है अलापोजा में. ये बैक वाटर्स है. बैक वाटर्स का क्या मतलब होता है, कैन यू आंसर? जो केरला है ये समुद्र है और ये एक पैरेलल ऐसे यहाँ पे बैक वाटर्स है. बैक वाटर्स में ज्यादा वाटर का फ्लो भी नहीं होता है, दे आर कनेक्टेड टू सी, और बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे सच टाइप ऑफ स्नेक बोट, बोटिंग एक्टिविटी, टूरिज्म एटसेट्रा बहुत पॉपुलर है. रोइंग टू सक्सेस. ट्राइबल वुमेन्स कलेक्टिव इन वायनाड ऑन अ मिशन टू कंजर्व वाइल्ड ट्यूबर्स. सो मेंबर्स है यहाँ पे नूर नागू सेल्फ हेल्प ग्रुप के, और हैमलेट वायनाड में वो ट्यूबर को कलेक्ट कर रहे हैं, वाइल्ड ट्यूबर. तो वाइल्ड ट्यूबर है, ये इंटीग्रल पार्ट है फूड बास्केट ऑफ ट्राइबल्स का फॉर सेंचुरीज, और ये ट्यूबर डिसअपियर होने लग गया था फ्रॉम प्लेटर, अभी इसको फिर से पॉपुलर किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है. नेम जो है नूरानगू ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू प्रोटीन रिच वाइल्ड ट्यूबर जो ट्राइबल कम्युनिटी कंज्यूम करती है. तो ये ट्रेडिशनल डाइट है, दिस इज इंपॉर्टेंट. ट्यूबर क्रॉप्स होती है. आप बताओ ये जो पोटैटो होता है ये किस टाइप की क्रॉप है? क्या पोटैटो ऑल्सो इज वन टाइप ऑफ ट्यूबर क्रॉप? सो दिस इज दैट. तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर भी, कुडुम्बश्री डिस्ट्रिक्ट मिशन के अंदर भी इनको हम ट्राइबल के लिए कंजर्व कर रहे हैं. और इस हैमलेट में बच्चों को भी सेंसिटाइज किया जा रहा है, हेल्दी डाइटरी हैबिट्स को एनकरेज किया जा रहा है वेराइटीज ऑफ ट्यूबर पे. एमजी नरेगा का लाइफलाइन है, एमजी नरेगा का वर्क भी है, यहाँ पे कलेक्शन हो रहा है. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसमें 100 डेज का पेड मैनुअल वर्क दिया जाता है पीपल को. सो दिस इज 100 डेज का पेड वर्क. ये एक राइट की तरह माना जाता है एमजी नरेगा. सो दिस इज एमजी नरेगा. देन दिस इज मणिपुर, और यहाँ पर है न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इन ईस्टर्न लद्दाख बीइंग अपग्रेडेड टू हैंडल फाइटर जेट्स. तो ईस्टर्न लद्दाख में ये न्योमा है, 13,700 फीट पे है. बैंक ऑफ पैंगोंग सो, ऐसे पैंगोंग सो है जिसका 1/3 इंडिया के पास है, इसके पास ये है न्योमा दिस एयर स्ट्रिप. तो यहाँ ऑब्वियसली हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं बिकॉज स्ट्रैटेजिकली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी यहाँ पे एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड बनाया है सो दैट इन केस ऑफ इमरजेंसी रिक्वायरमेंट हमारे जो ह्यूज ट्रांसपोर्टेशन जो एयरक्राफ्ट्स हैं, हरक्यूलिस एटसेट्रा, वो भी हम यहाँ पे लैंड करा पाए.
एनसीईआरटी फॉर्म्स 19-member पैनल फॉर टेक्स्ट बुक्स रिवीजन। एनसीईआरटी का रिवीजन होने वाला है क्लास 3 से 12, बहुत जल्द होगा ये, और न्यू एनसीईआरटीज आने वाली है, नई एनसीईआरटीज अभी आएंगी। सो दिस इज एनसीईआरटी। गवर्नमेंट प्लानिंग लॉ ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं। तो बार्कशाली मैन्युस्क्रिप्ट एक एंशिएंट इंडियन मैथमेटिकल टेक्स्ट है जो बार्क में, जो पेड़ होता है उसकी छाल पे लिखा गया था। ये अर्लीस्ट रिकॉर्डेड एग्जांपल है ऑफ द यूज ऑफ जीरो। सो जीरो जो है इसकी खोज इंडिया में हुई है, जीरो। सो ये लिखा है बार्कशाली मैन्युस्क्रिप्ट में। सेमिनल टेक्स्ट है जो 3rd और 4th सेंचुरी एडी में आया था। तो द पॉइंट इज कि इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को कंजर्व करना जरूरी है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। वी नीड टू कंजर्व देम। फर्स्ट इंडियन मेड MRI स्कैनर टू बी लॉन्च्ड फॉर क्लिनिकल वर्क इन अक्टूबर। दिस इज गुड। इंडिया डेवलप्ड है, इंडिया मेड है। सो दिस इज MRI। MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें क्या होता है, ऐसे पर्सन अगर इसमें ऐसे लाए होता है तो उसकी बॉडी का इंटरनल पूरा MRI के थ्रू एक बहुत अच्छा स्कैन आ जाता है, जिससे हम इंजुरीज या अदर टाइप ऑफ कोई भी डिफिकल्टी है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो दिस इज MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नो फाइनल गुड बायज इज रफ रिवर्स रश बॉडीज टू POK। 6 persons दिस इंग्लिश चैनल, बोट कैप्साइज हो गई है। सो दिस इज इंग्लिश चैनल। हवाई है, आर्मेनिया है। देन आप हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर अनवर उल हक कक्कर, नेम्ड पाकिस्तान न्यू केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। नेटो कैलिबर वेपन्स अभी दिए जा रहे हैं IS के टेरर ग्रुप्स में, नॉट ओके। ताइवान वाइस प्रेसिडेंट लीव्स फॉर पैराग्वे अमिड चाइनाज प्रेशर। Then Albanese condemns scare tactics on indigenous reform, Australian Prime Minister. Ukrainian missile shot down over Crimea bridge, says pro-Russia officials. See, ये होते हैं कोरल्स, कोरल रीफ्स होती है। कोरल रीफ्स में एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है कोरल पॉलिप का और जूजेंथली का। ये सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, इससे कोरल रीफ्स फॉर्म होती है आफ्टर से हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ये जूजेंथली कलर्ड होती है, और अगर जूजेंथली डाई होती है तो कोरल पॉलिप को फूड मिलना बंद होता है और कोरल पॉलिप भी डाई हो जाता है। सो द पॉइंट इज डिसकलरेशन ऑफ कोरल रीफ हो रहा है। दिस इज एन इंडिकेटर कि कोरल रीफ्स डिस्ट्रेस पे है। लो ह्यूमन एक्टिविटी हेल्प्स कोरल डिस्पाइट वार्म ओशियन। सी, एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अगर ह्यूमंस की प्रेजेंस नहीं होती है तो मोर और लेस नेचर अच्छा परफॉर्म करती है। ह्यूमंस जो होते हैं वो नेचर को डिस्ट्रॉय ज्यादा करते हैं। सेम थ्योरी यहाँ पे दिया है। कोरल रीफ का लॉसेस हो रहा है हवाई में, अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव है, बट स्टिल कोरल रीफ सर्वाइव कर जाती है, उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। बट अगर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज आ जाती है तो फिर कोरल्स का सर्वाइवल डिस्टर्ब होता है। तो डिस्टर्बेंसेस इंक्लूडिंग वाटर पॉल्यूशन हो गया, सी बेस्ड डिस्टर्बेंसेस हो गया, जिसमें ओवर फिशिंग भी है। सो मैराइन जो नेचुरल इम्पैक्ट है कोरल उसको विदस्टैंड कर लेती है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से कोरल वल्नरेबल हो जाती है। सो इससे नॉट ओनली इन हवाई बट ऑल ओवर द वर्ल्ड कोरल रीफ्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। सी टेम्परेचर राइज हो रहा है और ओशियन एसिडिफिकेशन इज ऑल्सो वन रीजन। टीबी डिटेक्शन इंडिया फार फ्रॉम मीटिंग द 2024 गोल है। 2025 तक हमारा टारगेट है, हमें टीबी एलिमिनेट करना है इंडिया से। So this is our new guideline. Then this is hominin migration linked to climate shift study reveals. So deep sea sediment core अभी फाइंड हुए हैं करीब 1.8 मिलियन ईयर्स पहले के, और ह्यूमन बींग्स का कैसे इवोल्यूशन हुआ उस पर एक नई लाइट थ्रो कर रहे हैं। ये न्यू अप्रोचेज है रिसाइकल पॉलीथाइलिन प्लास्टिक्स का। प्लास्टिक्स बड़ा ड्यूरेबल होता है, यूटिलिटेरियन होता है। प्रॉब्लम ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। ये एक बार बन गया तो फॉर इटर्निटी नेचर में रहेगा। टूटता है, माइक्रोप्लास्टिक्स में बनता है और फिर वो फूड चेन में भी एंटर करता है, और दिस इज कार्सिनोजेनिक, नॉट ओके। सो दैट इज वाई हम इसको रिसाइकल करने की बात करते हैं। नया प्लास्टिक बनाने की बजाय जो बन चुका है उसी को हम रिसाइकल करें। तो दिस इज लाइक वेस्ट पॉली olefin plastics can be converted into olefin via thermal depolymerization reaction as pyrolysis. Pyro मतलब heat। तो इस तरीके से कन्वर्ट करने की बात है। Global ecosystem water use efficiency has stalled. Water efficiency use efficiency has stalled. वाटर एज सच अर्थ में बहुत है, ब्लू प्लैनेट है, बट यूजेबल वाटर इज लेस। तो वेस्टेज नहीं होना चाहिए। वाटर कंजर्वेशन शुड बी अवर प्रायोरिटी।
मार्शियन ट्रांजिशन है, सीजनल पैटर्न है। ऐसा बोला जाता है मार्स जो प्लैनेट है, नियर बाय प्लैनेट, रेड प्लैनेट, यहाँ पर भी वंस अपॉन अ टाइम प्रोबेबली लाइफ फॉर्म होता था, बट बिकॉज मार्स का जो साइज है वो स्मॉल है, ग्रेविटी कम है, एटमॉस्फेयर चला गया और फिर लाइफ फॉर्म भी वहाँ पे नहीं है। इट इज पॉसिबल कि वहाँ पर ओशियन या वाटर के ट्रेसेस मिले, तो अभी हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो मार्स में हैबिटेबल वर्ल्ड हुआ होगा, इस तरीके की अभी फाइंडिंग्स है। जो इस बार सवाल है वो चंद्रयान 3 से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, चंद्रयान 3 एंड गगनयान। नॉर्थ इंडिया मोर अफेक्टेड होता है बाय अल नीनो। तो अल नीनो का मतलब होता है इंडिया में मॉनसून वीक होगा, ला नीना का मतलब है इंडिया में मॉनसून स्ट्रांग होगा। पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल का मतलब मॉनसून स्ट्रांग होगा, नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल का मतलब मॉनसून नेगेटिव मतलब वीक होगा। तो ये अल नीनो है। अल नीनो तो इंडिया में प्रोबेबली मॉनसून इस बार वीक हो सकता है। अहेड ऑफ एवरी मॉनसून मेट्रोलॉजिस्ट ट्रैक करते हैं डिग्री ऑफ नर्वसनेस से टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। तो अल नीनो ईयर है, कुछ साल जो होते हैं वो अल नीनो होते हैं। एक्चुअली इसका और थ्योरी हम देखें तो सदर्न अमेरिका में ये पेरुवियन करंट है, ये यूजुअली कोल्ड करंट होता है बट अपवेलिंग होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर ट्रेड विंड्स। बट जब ट्रेड विंड्स वीक होती है तो अपवेलिंग भी वीक होता है और ये जो कोल्ड करंट है ये वार्म करंट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जस्ट बिकॉज ये कोल्ड टू वार्म हो गया है तो यहाँ अनस्टेबिलिटी होती है। यूजुअली ये ड्राई कंडीशन होती है पेरुवियन कोस्ट, यहाँ पे चिली डेजर्ट्स एटसेट्रा भी है, चिकी कमाटा एटसेट्रा। यहाँ बारिश होती है बिकॉज ऑफ जब कोल्ड करंट वार्म से रिप्लेस हो गया है, मतलब अल नीनो आ गया है। तो जब यहाँ पर बारिश हो रही है तो उसका इंडिया में इम्पैक्ट अगर हम देखें तो इंडिया में बारिश वीक हो जाती है, जस्ट अपोजिट होता है। ला नीना में कोल्ड करंट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ज्यादा ड्राइनेस आती है, तो इंडिया में मॉनसून स्ट्रांग हो जाता है। ओके, तो ये एनसो फ्लक्चुएशन है, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, तो ये इंडिया में इम्पैक्ट डालता है। बाकी रेगुलर जो अभी आपको बताया कि जब अल नीनो है तो इंडिया में बारिश कम, ला नीना मतलब बारिश ज्यादा, तो मॉनसून रेनफॉल ऐसे डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा इंडिया में। अब बिकॉज इंडिया रेन फेड एग्रीकल्चर है, मॉनसून इज द ट्रू गॉड, सो मॉनसून अगर वीक होता है तो हमारी इकोनॉमी भी इम्पैक्ट होती है, स्पेशली रूरल इकोनॉमी। सो दिस इज दैट। वैसे मॉनसून एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनन है बट इसमें ग्लोबल लेवल की इवेंट्स भी इम्पैक्ट करती है, जैसे कि एनसो और अल नीनो एटसेट्रा। सो इस तरीके से क्लाइमेट चेंज भी है, बे ऑफ बंगाल, लो प्रेशर साइक्लोन, डिप्रेशंस, ये भी इंटेंसिफाई हो रहे हैं, फ्रिक्वेंट हो रहे हैं, राइज इन टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। तो द पॉइंट इज कि इससे अल नीनो का इम्पैक्ट इस बार इंडियन कॉन्टिनेंट में ज्यादा देखने को मिलेगा। What is the debate around Article 370? We should wait because अभी ये ongoing arguments हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में। एब्रोगेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370। जब ऐसे डिबेट्स चल रहे हैं ना, इसमें अननेसेसरी कमेंट्स नहीं देना चाहिए। लेट अस वेट, यहाँ काफी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, जैसे ही ये कंप्लीट होगा फाइनल जो वर्डिक्ट आएगा हम उसको फॉलो करेंगे। Why has government called for PC imports curbs? The simple answer is कि ये $300 बिलियन से भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमें। हम रेडीमेड बुलाते हैं और इससे हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है। तो द पॉइंट इज कि अभी गवर्नमेंट ने बैन लगाने की बात की इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर्स, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स। बैन नहीं, रिस्ट्रिक्शन की बात की। रिस्ट्रिक्शन का मतलब आपको इंपोर्ट करने के लिए एक वैलिड लाइसेंस चाहिए होगा। तो द पॉइंट इज इसका इमीडिएट इफेक्ट ये हुआ कि एक पहले तो डे 1 से इसे इम्प्लीमेंट करना था बट अब ये नवंबर 1 से इम्प्लीमेंट होगा। सो हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर 8471 डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स यूनिट्स एटसेट्रा अभी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी नवंबर 1 से। तो द पॉइंट इज कि जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स में भी इनकी सेल होती है, तो पहले ये प्रोडक्ट्स इंडिया में आ रहे थे बट वो इंपोर्ट इंडिया को एज सच हेल्पफुल नहीं हो रहा है। एक तो फिजिकल ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, दूसरा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एनकरेज नहीं हो पाती। तो द सिंपल रीजन इज हम डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं इंपोर्ट में, हम चाहते हैं इंडिया में ही हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग हो। दैट इज वाई हम फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 भी है आईटी हार्डवेयर की। वी आर ट्राइंग, ये 300 बिलियन का हमने अभी इंपोर्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, इसको कम करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक के यूजेज बढ़ रहे हैं। इंपोर्ट इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने की जरूरत है, जैसे बहुत सारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अभी इंडिया में चालू हो गई है। अभी लैपटॉप एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की भी मैन्युफैक्चरिंग हमें करना है।
तो एप्पल, आसूस, ऐसे सारे इन्होंने बोला है कि गिव अस सम टाइम और इंडिया में हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। कैन इम्प्रूव न्यूट्रिशन प्ले प्रिवेंट टीबी? यस, न्यूट्रिशन अगर आपका अच्छा होता है, प्रॉपर डाइट होती है, प्रॉपर रेस्ट होता है, प्रॉपर स्लीप होती है, आप अपने आप को इमोशनली साइकोलॉजिकली स्टेबल रखते हो, आप एक विनर रहोगे एग्जाम में भी और लाइफ में भी। सो न्यूट्रिशन एक बहुत अच्छी ज़रूरत होनी चाहिए। जैसी हमारी बॉडी होती है, हेल्दी फूड है तो हेल्दी बॉडी है। सिमिलरली हमें जो इनपुट भी होता है, द काइंड ऑफ कंटेंट वी कंज्यूम, द काइंड ऑफ बुक्स वी रीड, ये भी हेल्दी रखना ज़रूरी है। फॉडर शुड बी गुड। तो इम्प्रूव न्यूट्रिशन हेल्प प्रिवेंट टीबी? यस ऑफ कोर्स। स्क्रैम्बल टू सेव द प्लैनेट्स लंग। स्क्रैम्बल मतलब जैसे एयरफोर्स में प्लेन स्क्रैम्बल होते हैं, अगर कोई ऑपोजिंग फ्लाइट आ जाती है तो स्क्रैम्बल मतलब सडन हम लोग उसको रश कर रहे हैं। ब्राजील और अमेजोन कंट्रीज में अभी ह्यूज लॉसेस हो रहा है फॉर दिस रेन फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ इलीगल माइनिंग एंड लॉगिंग मतलब फॉर टिम्बर एटसेट्रा इनको काटा जा रहा है फॉरेस्ट को, और इलीगल माइनिंग मतलब फॉरेस्ट क्लियर किया जा रहा है ताकि वहाँ पे माइनिंग से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी। यहाँ पे जो इंडिजिनस पीपल है उनके राइट्स भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो अमेजोनिया एंड इट्स मैसिव रिवर बेसिन स्ट्रैडल सेवरल कंट्रीज। 60% इसका ब्राज़ील है, 13% पेरू है, 8% बोलीविया है, 7 और 6% रेस्पेक्टिवली कोलंबिया और वेनेजुएला है, 3% गुआना और सुरिनाम है, और 1% फ्रेंच गुआना एंड इक्वेडोर में। सो लुक एट द साइज। आप बताओ ये जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, साइज एरिया वाइज इज इट बिगर देन ऑस्ट्रेलिया? यस और नो? अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। तो अमेजोन का जो रेन फॉरेस्ट है ये 1.3% प्लैनेट सरफेस है, 4.1% ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस है। दिस इज ह्यूज। रैपिड डिफॉरेस्टेशन से इकोसिस्टम इम्पैक्ट हो रहा है, तो हमें डेथ ऑफ द फॉरेस्ट को स्टॉप करना है, बिकॉज डेथ ऑफ द फॉरेस्ट मतलब डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये है सेंटिनल्स गार्डिंग द नॉर्थ ईस्ट। मणिपुर में अभी ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस लॉगर हेड पे थे। असम राइफल्स है, ये CAPF का पार्ट है। ये अभी मणिपुर क्लैशेस में भी डिप्लॉय किया गया था। हिस्ट्री देखे तो 1835 से है। काचर लेवाई में इसको इनिशियली बनाया गया था ब्रिटिशर्स ने टू प्रोटेक्ट इट्स सेटलमेंट्स फ्रॉम ट्राइबल्स। यहाँ 1835 में इसका फाउंडेशन हुआ था। फ्रंटियर फोर्स बनाई गई, वर्ल्ड वॉर में भी इनको यूज किया गया था। 3000 पर्सनल को असम राइफल्स नाम दिया था 1917 में। तो पहले ब्रिटिश रेजिमेंट के अंदर थी, फिर सेकेंड वॉर में असम राइफल्स ने काफ़ी सारा टास्क भी परफॉर्म किया था। इवैक्यूएटिंग रेफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार देन बर्मा, रेजिस्टेंस था विक्टर फोर्स जापानीज फोर्सेस का। 1962-65 वॉर में भी असम राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया था। असम राइफल्स इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में 1987 में सेंड की थी, उसका भी पार्ट था। पैरामिलिट्री फोर्स की 17 बटालियन से आज की डेट पे 46 बटालियन स्ट्रेंथ है और 63,000 पीपल यहाँ पर डिप्लॉयड है। इसको ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी लीड करते हैं। तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर में भी ये डिप्लॉयड है और ये एक इंटीग्रल पार्ट है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। तो इनको सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी बोला जाता है। पैरामिलिट्री है तो CAPF। आफ्सपा के टाइम पर भी यहाँ पर न्यूज में ये थी। सो द पॉइंट इज कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है ये ज़रूरी है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। पैरामिलिट्री और पुलिस के बीच में, पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, कन्फ्रंटेशन को रिजॉल्व करना चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कट्स होम कार लोन इंटरेस्ट रेट्स। LIC फोकस्ड है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, ONGC का प्रॉफिट हुआ। देन हायर सेल्स है, मार्केट बूस्ट, कॉर्पोरेट ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया रिबाउंड्स शार्पली। देन दिस इज स्पोर्ट्स एंड देन दिस इज कांचीपुरम क्लासिक। ये बहुत अमेजिंग है। अ वीवर इन कांचीपुरम डिवाइड्स द रॉ सिल्क यार्न एंड वाइंड्स द स्काइंस फॉर डाइंग। तो इस तरीके से डीप ह्यूज है, कलर भी इसमें डाला जाता है, इंटेंसिटी ऑफ कलर, और ये काफी मेथोडिकल और दिस इज लेबर इंटेंसिव प्रोसेस होती है जिससे कांचीपुरम का साड़ी एंड क्लासिक बनाया जाता है, वीविंग दिस टेक्सटाइल। तो डाइंग है, हैंडल विद केयर है, सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट। बट अगेन द प्रॉब्लम इज इकोनॉमिक्स। अगर इकोनॉमिक्स करेक्ट नहीं होती है तो नो मैटर वो कितना ही ऑसम प्रोडक्ट है, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, इकोनॉमिकली करेक्ट नहीं है, तो वो प्रोडक्ट जो होता है वो लॉस्ट इन ऑब्लिवियन हो जाता है। सो सबसे पहले इकोनॉमिक्स करेक्ट करना प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी, अगर हम अपने ट्रेडिशन आर्ट फॉर्म को कंजर्व करना चाहते हैं। तो हैंडलूम जैसे है,
नो डाउट पीपल से दिस इज रियली गुड, बट अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है इन वीवर्स के लिए तो वो उसको वर्क को नहीं करेंगे फिर वो, क्योंकि उनको बेनिफिट नहीं होगा. सो द पॉइंट इज अंडर द स्कॉचिंग सन सी सो मच ऑफ हार्ड वर्क, 10 to 15 डेज लग रहे हैं. सिल्क साड़ी बहुत अमेजिंग होती है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है, बट फैशन ट्रेंड्स बदल गया है. जो फास्टर पावर लूम है उससे कंपटीशन हो रहा है, चीपर आर्टिफिशियल सिल्क आ रहा है, फ्यूअर बायर्स है. तो वीवर्स को यहाँ बेनिफिट्स नहीं दिख रहा है और इससे जॉब लॉसेज हो रहा है, रेवेन्यू लॉसेज हो रहा है, पैंडेमिक से प्रॉब्लम हो गया तो काफ़ी डिफिकल्टीज यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है. सो दिस इज कांचीपुरम सिल्क. ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे. अभी हम देखते हैं 8 अगस्त के आंसर सबमिशंस. आप लोग बहुत अच्छा आंसर्स लिख रहे हो, एक्सीलेंट. मोरारजी देसाई जी, देन इंडिया इजराइल एंड लैंडस्लाइड्स, 3 पे हमें टॉपिक बनाने थे. लेट अस सॉर्ट इट बाय द ओल्डेस्ट. सो दिस इज वेरी नाइस. चंदन, देखो मैप कितना प्रोपोर्शनेट हो गया है, वेरी गुड. हर किसी को आपको एटलीस्ट 6 पेजेस लिखने चाहिए. ऐसा बोला जाता है ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑनलाइन क्लासेस सही नहीं है, ऐसा गलत है. ऑनलाइन क्लासेस आर गुड. द पॉइंट इज कि अगर हम उसको उतनी ही सिंसियरिटी से लें जितनी सिंसियरिटी ऑफलाइन क्लासेस में होती है. एज अ सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट आप सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, आपको डायरेक्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए. फिर वर्क तो आपको खुद को करना पड़ेगा. इफ यू हैव दिस सेल्फ मोटिवेशन तो इससे अच्छा और कोई तरीका हो ही नहीं सकता एग्जाम प्रिपरेशन का. राइट एटलीस्ट 6 पेजेस ऑन डेली बेसिस. चंदन, दिस इज सो नाइस. देखिए लैंडस्लाइड्स बताया, कॉजेस बताया, तो इससे क्या चीजें कंसोलिडेट हो जाती है. आप मेंस लिखने जाओगे आपको बहुत फायदा होगा. फिगर दिस है, वेरी नाइस. राइटिंग बेहतर होती है, लिखने की प्रैक्टिस बढ़ती है, स्ट्रेंथ आती है हमें, कंसंट्रेशन लेवल सही होता है, मल्टीपल बेनिफिट्स है. मोरारजी देसाई, टाइमलाइन बताया आपने, फैंटास्टिक. सुप्रिया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो. एट टाइम्स हम बहुत हार्डवर्क डालते हैं बट उसके इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं आते. वी शुड बी पेशेंट. बैम्बू का स्टोरी देखा है ना, when the going gets tough, the tough gets going. Always remember this. So this is really good. Contribution बताया है, very nice. Political career. See, India, Israel. अब this diagram work is so nice. This is really, really good. This is one of the best. Very nice. Then political relations. Very nice. Landslides के बारे में भी बताया. This you are really good. बहुत अच्छे से कर रहे हो. Confidently हमें इसको continue करना है. दीपेश, आप भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, वेरी नाइस. सी, सारे पॉइंटर्स लिख दिए. 1 पेज का शॉर्ट नोट तैयार हो गया. दिस इज वंडरफुल. सी, एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग वेरी वेरी नाइस. सी, दिस इज सो गुड. इंडिया एंड इजराइल, डिफेंस, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, तो देखो हेडिंग सब हेडिंग कितने अच्छी हो गई. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अदर्स एटसेट्रा, फैंटास्टिक, वेरी ऑर्गेनाइज. दिस डायग्राम इज वेरी ब्यूटिफुल. लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं, कॉजेस क्या है, एक्सेलेंट कॉपी. Very nice. Shivakshi, this is very good. Morarji Desai ji, 1, 2, 3, 4. Now see, this is more formal. This is better. Contribution freedom struggle में, then very nice. Then this is India Israel, start किया, news. अब यहाँ एक डायग्राम भी बनाना था. कोशिश करना है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाएं, और कोशिश करना है ये डायग्राम हम विद इन स्पेस ही बनाएं, बिकॉज यूपीएससी में इस बात पे नेगेटिव मार्क्स भी हो जाते हैं. अगर मार्जिन्स के बाहर जा रहा है ना तो -2, -4 ऐसे हो जाता है. सो केयरफुल रहना है कि हम विद इन जो मार्जिन्स है उधर ही बनाएं और इसको बॉक्स में कवर कर दें. ओके, दिस इज वेरी गुड. वल्नरेबिलिटी, दिस डायग्राम इज गुड. लैंडस्लाइड्स, फैंटास्टिक. वर्षा, दिस इज वेरी गुड. मोरारजी देसाई जी के बारे में बताया. कॉन्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड. दिस इज रियली गुड. आप कोट्स भी यूज कर रहे हो, यूनिक टच है, दिस इज एक्सीलेंट. और ये जो आप 1 लाइनर्स बता रहे हो, एग्जाम्पल्स, इससे आपकी कॉपी एनरिच होती है. सो दिस इज रियली गुड. Prepare a short summary on India Israel. This is nice. India and Israel. See, राम नरेश, डायग्राम वर्क. डायग्राम हमेशा शुरुआत में बनाना है. ये फ्लो चार्ट का स्टाइल बहुत सही है. वेरी गुड राम नरेश. लैंडस्लाइड्स, अब देखो ये कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है, बॉक्स के अंदर है, फिगर 1. ये चीजें बहुत मायने रखती है. प्रेजेंटेशन स्किल्स, फैंटास्टिक. मोरारजी देसाई जी के बारे में भी आपने यहाँ पे बताया. वेरी गुड राम नरेश. सी, पूरा क्रोनोलॉजिकली कवर किया है. नेहा, दिस इज गुड. अब देखो ये डायग्राम ज्योग्राफिकली बड़ा करेक्ट डायग्राम है, किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, रेजिस्टेंस एंड देन ग्रेविटी. टाइप्स बताया. तो ज्योग्राफी साइंस वाले सब्जेक्ट्स में हम ऐसा डायग्राम फ्लो चार्ट बना सकते हैं. लर्न इंडिया का मैप हमेशा प्रोपोर्शनेट बनाना है, करेक्ट. तो जैसे क्लास में बताया था ना, 2 लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है ताकि हमारा डिस्टॉर्टेड नहीं बने मैप, है ना. दिस इज गुड. एनडीए में गाइडलाइन है, वेरी नाइस. हरजिंदर, दिस इज वेरी गुड डायग्राम, वेरी नाइस. स्लाइडिंग सरफेस, ओरिजिनल, वेरी गुड हरजिंदर.
देन कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड, फैंटास्टिक. इंडिया एंड इजराइल कवर किया है, गुड. देन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, वे फॉरवर्ड. देन दिस इज मोरारजी देसाई जी, पार्टिसिपेशन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस. सृष्टि, वेरी गुड. आप बहुत हार्ड वर्किंग हो एंड आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, वेरी वेरी गुड. दिस इज 1 2 लैंडस्लाइड्स क्या होता है. लुक एट दिस चार्ट, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल चार्ट, वेरी गुड. दिस डायग्राम अगेन रियली रियली नाइस. ज्योग्राफी में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइप्स ऑफ फ्लोज बताए आपने, वेरी नाइस. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, वेरी वेल रिटन. पवित्रा, दिस इज वेरी गुड. दिस डायग्राम इज सी, लैंडस्लाइड क्या है, फॉल, टॉपल, स्लाइड एंड स्प्रेड, वंडरफुल. टाइप्स बताए आपने. देन ये डायग्राम चार्ट बनाया, इम्पैक्ट, वेरी गुड. यहाँ पे इंपॉर्टेंट, सी दिस इज सच अ ब्यूटीफुल वे टू टेल कि कहाँ कहाँ इंडिया में लैंडस्लाइड्स हो रहा है. दिस इज अ रियली गुड आइडिया. जरूरी नहीं कि आप इंडिया का मैप पूरा पूरा ही बनाए, ऐसे शॉर्ट्स में एरिया स्पेसिफाई करके भी आप बना सकते हो. हिमालयन बेल्ट, ये मेघालय, एवरीबडी लर्न दिस थिंग. दिस इज रियली नाइस, वेरी गुड पवित्र. देन दिस इज स्टेप्स टेकन, फैंटास्टिक. मोरारजी देसाई जी के बारे में सृष्टि ने बहुत अच्छे से लिखा. देखो क्रोनोलॉजी टैबुलेट कर दिया, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, फॉर्मल है, वेरी गुड. देन लेगेसी एंड आइडियोलॉजी, फैंटास्टिक. मंजू, दिस इज गुड. सी मंजू की कॉपी भी बहुत ब्यूटीफुल होती है. यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स. पॉलिटिकल लाइफ, आइडियोलॉजी, वेरी नाइस. दिस इज इंडिया एंड दिस इजराइल का इशू, मैप इज गुड. देन साइंस एंड टेक एंड वे फॉरवर्ड, गुड. वर्षा, दिस इज अगेन रियली गुड. सी द डायग्राम वर्क, दिस इज वेरी गुड. आई एम सो हैप्पी. डायग्राम्स आप लोग बहुत अच्छे बना रहे हो, फैंटास्टिक. ये छोटी छोटी चीजें ही पता है डिफरेंस क्रिएट करेगी. मेंस एग्जाम में राइटिंग बहुत जरूरी है. पवित्रा, दिस इज गुड. टाइमलाइन के थ्रू बताया, सच अ गुड स्ट्रैटेजी. एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, देन डी हाइफनेटेड, लेटेस्ट सारी चीजें आ गई. सी द डायग्राम वर्क, वेरी गुड सृष्टि. दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम. प्रीलिम्स में कई बार सवाल आया इजराइल की बॉर्डर्स कौन सी है. सो द आइडिया इज वी डू वन क्वेश्चन, उससे मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाए. एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिफेंस, स्टार्टअप, सिक्योरिटी, फैंटास्टिक. कोऑपरेशन, वेरी नाइस. दिस इज रियली गुड. कंक्लूजन, वेरी एक्सटेंसिव. आप बहुत अच्छा कर रहे हो सृष्टि, दिस इज गुड. इंदिरा गांधी जी के बारे में, ओके ये यस्टरडे का है, अगेन दिस इज रियली गुड. इंदिरा गांधी जी, वेरी नाइस. अर्ली लाइफ बताया आपने. इंदिरा गांधी जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एक्शन जो आपने लिए और टेन्योर में एज अ प्राइम मिनिस्टर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के, वंडरफुल. तो सी राइटिंग से कॉन्फिडेंस आता है, राइटिंग से हमारी पढ़ाई ऑन ट्रैक होती है. एवरीबडी शुड राइट, दिस इज सो गुड, वेरी नाइस. सी कितना डिटेल में सारी बातें लिखी हैं यहाँ पे, वेरी गुड. तो इससे हमारा ऐसे भी तैयार हो गया, बहुत सारे अलाइड टॉपिक्स भी तैयार हो गए. ओके, सो एवरीवन शुड राइट आंसर्स. कल हम 8th हो गया, कल हम बात करेंगे 9th ऑफ अगस्त की. तो देखो इसमें आपके पास 3 टॉपिक्स हैं, प्रिपेयर एंड सबमिट योर आंसर कॉपी. Okay, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.